70 to 80% of a day is a habit. तो अगर आपको लगता है you are not able to balance your personal and professional life, you lack focus, because when you are dealing with the professional life, you are continuously overthinking about the personal life. And when you are with the personal life, that is with your family, at that point of time, you're only thinking about the work life and what are the problems in the work life. And you think, I'm not able to focus, I am so distracted. That's not the reality. The reality is that it has become your habit. Distraction has become your habit. So if you want to decode it furthermore, this video is little deeper on distraction ka ek chehra jo habit hai. What is the real relationship between focus and distraction? We have covered in the previous video. This is the 5th part of the focus series. So I would suggest that first fix the foundation of what is distraction and what is focus, and then look into this aspect, which is distraction as a habit. This is part 5. Hi, everybody. This is Mind Coach Jyoti. I am an educator turned life coach, empowering people with mind tools not taught in school so that you can create a desired life. Because all your life you were told where to focus. You were not told how to focus. You were only told that you are distracted, but you were not told how to not to be distracted. Because distraction ka ulta focus nahi hota. Distraction ka ulta traction hota hai. So let's look into the deeper version today. That is distraction just a habit? If yes, why? Abhi, the example that I gave you about the personal and the professional life balance, I can guarantee it, I can bet it, that it is not that you lack focus, it is not that you're distracted, it has become a habit. आपके mind को energy save करनी होती. So any behavior that you do like 3 to 4 times or a little more than that, your mind makes it a pattern. And after the pattern, of course, it becomes gradually a habit and it goes straight into the unconscious. तो अगर मैं आपको छोटा सा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का भी एग्जांपल दूं, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में सिर्फ 1 आवर या 2 आवर्स मैक्सिमम, 2 आवर्स इज स्टिल बिग, अगर आप शाम को सिर्फ 1 घंटा भी कंप्लीटली फोकस्ड पर्सनल टाइम दे देंगे, ये तो क्वालिटी ऑफ योर पर्सनल लाइफ विल इंक्रीज एंड यू विल नॉट थिंक अबाउट देम ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ. लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप फोकस्ड वर्क दे दें और आप घर के बारे में ना सोचें, तो वहां पे भी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, वो इनकम्प्लीट वर्क नहीं रहेगा. So is it really a matter of focus and distraction? It is a matter of habit. आपको आदत हो चुकी है ओवरथिंकिंग की, आपको आदत हो चुकी है कि जहां है वहां ना रहें, बाकी सब जगह के बारे में सोचते रहें. अब ये आदत आपको कब लगी और कैसे लगी? So I hope you have already understood that distraction is actually become your habit. वो आदत हो चुकी है आपको. अभी आदत कैसे हुई? Let's understand this. Law of practice. What does law of practice says? Law of practice says कि अगर आपने कोई भी skill, any skill, 10,000 hours तक अगर आपने practice किया, तो आप उसमें pro हैं, आप उसके master हैं. Nobody does it like you do it. If you have practiced something for 10,000 hours, आप कोई भी skill आज उठा लें, music ले ले, cooking ले ले, driving ले ले, अगर आपने वो आज 0 से भी शुरू किया है, लेकिन you are dedicated to commit 10,000 hours to it, you will be pro at it. Now let's look at the other version of it, that this is attention economy. आपकी attention हर कोई हर वक्त मांग रहा है. आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो FM भी आपकी attention मांग रहा है. आप सड़क पे चल रहे हैं तो वो hoardings भी आपकी attention मांग रही है. What is conscious and reflexive attention? It's been already covered in the previous video, but I would still tell you quickly. Conscious attention, where you decide to pay attention to. Reflexive attention, जहां आपकी attention automatically चली जाती है. अब सारे दिन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे, आप ज्यादा क्या कर रहे हैं? कॉन्शियस अटेंशन, दैट आई डिसाइड टू बी हियर फॉर दिस मच टाइम एंड आई एम देयर, या फिर फिजिटिंग राइट नाउ, इसके बीच में फोन बज गया, फोन को रिप्लाई कर दिया, वापस काम पे आ गए, बीच में पानी पीने चले गए, बीच में किसी का कॉल आ गया, बालकनी में चले गए, आधा पौना घंटा वहां निकल गया, वापस आए तो किसी ने घर में टीवी ऑन कर रखा था, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग सीन या इंटरेस्टिंग न्यूज चल रहा था, फिर आप वहीं बैठे रह गए, एंड उसके बाद वो काम वहीं का वहीं रह गया, आप कहीं के कहीं पहुंच गए. सो लुक एट योर डे. व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग मोर? इज इट फोकस्ड कॉन्शियस अटेंशन, or is it distraction, that is your reflexive attention, that you're just going by?
और अगर आप मानते हैं कि आपका डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस कहीं ज्यादा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने सालों से, कब से? क्योंकि सिखाया तो था ही नहीं किसी ने आपको कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटते हैं। बट अभी आप ये कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप मास्टर हो चुके हैं इस चीज के? यू रियली मास्टर्ड द स्किल ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. यू हैव रियली मास्टर्ड द आर्ट of not being in present but either being in the past or being in the future. आपका पास्ट और फ्यूचर हो सकता है आप कहें कि नहीं मेरा पास्ट सच में ही ऐसा है, नहीं नहीं मेरा फ्यूचर सच में ऐसा है कि मुझे टेंशन होनी है, बट क्या उससे सॉल्व हो रहा है? यू नीड टू लर्न लिटिल बिट ऑफ माइंड मास्टरी एंड इमोशनल मास्टरी हियर, बट स्टिल आई कैन प्रूव इट टू यू दैट ऐसा नहीं है. हाउ टू स्टॉप दोज बैकग्राउंड एप्स? आपको आदत हो चुकी है 10-10 15-15 बैकग्राउंड एप्स ओपन रखने की और वहां पे फिजिट करते रहने की, एक ऐप से दूसरी ऐप, दूसरी ऐप से तीसरी ऐप. हाउ टू क्लोज दोज एप्स? अपने हैंड में ये वाला पोर्शन अगर आप इन 4 फिंगर से ऐसे प्रेस करेंगे, आई विल नॉट प्रेस इट मच अदरवाइज आई विल फॉरगेट व्हाट टू स्पीक. तो अगर आप इसको अच्छे थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे, अभी आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या सोचें. तो अगर आपने वो ब्लैंकनेस को महसूस किया अभी, इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, डू राइट इट इन द चैट बॉक्स ब्लैंक दैट यू डिड एक्सपीरियंस कि अभी क्या सोचूं मैं. तो अभी आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे अपने पास्ट की और अपने फ्यूचर की? All I want to prove is that there are better tools available, and get over your excuses that I have to think about my personal life when I am at work, or I have to think about my past, I cannot get over it. I have to think about my future, I cannot get over it. You have to learn mind programming, and I always recommend NLP. I'm an NLP master. You can join my free webinar. The link is in the description box. But to continue further, there are a number of ways where you can practice mindfulness. Again, if you start practicing focus today, will you be a focus master? Yes, you will be. But if you don't use it, you lose it. Focus is like a muscle. अगर आपने जिम जाकर अच्छी खासी बॉडी बनाई है और सडनली आप उसे जाना छोड़ दें, कुछ टाइम में वो बॉडी भी वापस लूज होने लगेगी. सो इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट. ऑलवेज रिमेंबर, फोकस इज अ मसल which needs to be practiced, which needs to be continuously practiced. अब इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? लेट्स द नेक्स्ट टॉपिक. क्या आपने ट्रैक सेट किया था? सेट द ट्रैक. पीपल व्हेन कंक्लूड, बहुत जल्दी आप कंक्लूड कर लेते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं. छोटी छोटी बातों पे आप कंक्लूजन कर लेते हैं कि मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हूं. आई सफर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आई एम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड. कहां से, किस चीज से? डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है ये ट्रैक था और आप मुड़ गए. क्या आपने ट्रैक सेट किया था? क्या आपको ट्रैक सेट करना आता है? What is distraction? We have done it in the previous video. It's a promise that you break with yourself. It's a promise that you break with yourself. लेकिन आप एक दिन उठते हैं, सुबह उठ के इतनी बड़ी टू डू लिस्ट बनाते हैं और आपको लगता है आज ये टू डू लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए. एक बार पूछें खुद को, कोई सुपर ह्यूमन भी उस लंबी सी सडनली आने वाली टू डू लिस्ट को पूरा नहीं कर सकता है. तो दिन के एंड में वो आप पूरा नहीं करते हैं और आप फिर सेल्फ सैबोटाज करते हैं और अगले दिन से या 2 दिन में दोबारा से अपने पुराने पैटर्न में चले जाते हैं. लर्न द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग दोज पैटर्न्स. वो पैटर्न आपके अंदर बहुत सालों से है, डिस्ट्रैक्शन का पैटर्न. ये स्लोली एंड स्टेडली जाएगा और फोकस का पैटर्न इंस्टॉल हो जाएगा. तो अभी मिनिमम आपने क्या करना है? आपने अपना ट्रैक सेट करना है. लेकिन अभी आप 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे से ऊपर अपना ट्रैक सेट नहीं करेंगे. इट्स अ प्रॉमिस दैट यू मेक टू योरसेल्फ, इवन इफ इट इज सोशल मीडिया. You will make a promise to yourself that next 30 minutes only I will scroll on the YouTube. Next 30 minutes only I will do those reels or watch through or use the entertainment. But 30th minute पे आपको रोकना है. That is where you come in harmony with yourself. That is where you start practicing promises with yourself. That is where focus will come into picture. मैंने कहा कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है. आपको वीडियो गेम खेलने या वीडियो गेम खेलें, पर क्या आपने डिसाइड किया था कि आज शाम को 4 बजे ही मैं वीडियो गेम खेलूंगा, या सामने दिख गई तो आप शुरू हो गए? यू हैव टू डिसाइड क्लियरली. जितना आप ट्रैक सेट करेंगे, और प्लीज पूरे दिन का ट्रैक सेट करके माइंड को पेन ना दे. पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, माइंड के पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल को समझे. जहां पेन है वहां से माइंड भागता है. तो जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो भी आप इसलिए होते हैं क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं
उसमें थोड़ा सा पेन है। इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, that how your mind bluffs you into some tool which you can use. But right now you have to promise yourself that you will make छोटे छोटे promises, 10 minutes promise, 20 minutes promise, that for next 10 minutes I am not listening to anything. आप अपने मोबाइल को भी बंद कर देंगे, जो भी आपका जो आपका वॉलंटरी अटेंशन है उसी पे कंट्रोल करेंगे, और इनवॉलंटरी लाइक जो एकदम से आपका रिफ्लेक्सिव अटेंशन कहीं चला जाता है, उसके सारे रास्ते आप अगले 10-20 मिनट के लिए बंद कर देंगे। अगर आपने प्रॉमिस किया है और आप वो प्रॉमिस निभाते हैं, यहां से आपका हैबिट चेंज होगा। फ्रॉम हियर यू विल चेंज योर हैबिट। नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन, what is the biggest habit that you've made? That is physical, mental and emotional declutter. अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्लटर्ड हैं आप, एंड यू नीड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डीक्लटरिंग। फिजिकल क्लटर इज द आउटसाइड क्लटर। आपके माइंड को पैटर्न बनाने की आदत है। आपके माइंड को जो जहां दिखता है वो उसमें पैटर्न ढूंढता है। तो अगर आपके वर्क एरिया में बहुत सारा क्लटर पड़ा है, चीजें सिस्टम से नहीं पड़ी हैं, दिस इज कॉल्ड कोग्निटिव लोड। आपके माइंड पे लोड आता है उस चीज का। दैट इज वाई वो 126 बिट्स थोड़ा स्पेंड हो जाता है, इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोस। सो अभी आप फोकस नहीं कर पाएंगे, देन ऑल्सो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। सेकेंड इज मेंटल डीक्लटर। मेंटल डीक्लटर के लिए मैंने आपको सिखाया, आप एप्स को क्लोज कर सकते हैं, प्लस राइट डाउन एवरीथिंग। लिख दें इसे, खाली करें इसे, राइट इट डाउन ऑल। इमोशनल मास्टरी सीखें। इस एक्सक्यूज के साथ रहना छोड़ दें आप कि क्योंकि मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है तो मेरे इमोशंस ऑब्वियस हैं। नो, नन ऑफ द इमोशंस आर ऑब्वियस। all the emotions are stories, all the emotions are manufactured, all the emotions are learned behavior. Yes, they are. You can check the emotional mastery series to understand emotional clutter and declutter better. And right now I would suggest you to go into the previous videos. Today we have clearly understood that distraction is a habit, and what do we actually do to become more productive? अपने टाइम से अपनी इफेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर इंक्रीज द फोकस, we will do it in the next part. If you like this video, please subscribe my channel, like the video and hit the bell icon also, and do share it with somebody who really needs it. And don't forget to check the previous videos. Till then, bye bye from your mind coach Joe.